Okay, so let's start. Hare Krishna, everyone. Thank you for joining us today. And today, as we all know, we have a session for like how to prepare for end semester exams, like study strategy and all the planning. So today's speaker is Dhruv Prabhu, and he is my good friend, and he's a fourth year undergrad student. His branch is Electronics and Communication, that is ECE, and he has a very good CGPA, and he is one of the achievers in the branch. And moreover, he did his intern at Panasonic, and moreover he brings a lot of experience regarding to academics, moreover the skills you require for better placement and all the things you guys should do in college for your like career perspective and academic perspective. So he'll be addressing you all guys, and I hope इस सेशन से जितना हो सकता है उतना you guys will be benefited and carry करोगे. So kindly be very attentive and try to make down some note down few points if you like to, so that बाद में तुम्हारे को revise करने में help हो. And yeah, not taking much time. Over to you, Dhruv. Thank you. Thank you so much, Abhinav, for this wonderful introduction. I'll just share my screen. Abhinav, could you permit? So is my screen quite visible? I guess so. Okay, let's start. Yeah, welcome. So as Abhinav had rightly said, I am Dhruv and I am from EC 2025 batch, and I am to show you around here. So before I start talking, I would like to know like how many of you are from the first year? You can unmute and tell. Where I am from first year. Okay. Anyone from second year? No, only first year. As a second year के भी हैं. Okay, nice. Okay. ठीक है, very well. We'll start. So first thing about doing good in examination is having the right materials or the right study material. So you should look at your own notes. The previous year notes, like कई बार आपको senior के notes मिल जाते हैं या फिर PYQs, so they give you a very good idea as to कि क्या पढ़ना है and क्या पूछा जाता है. आपके प्रोफेसर्स आपको काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे सकते हैं, हिंट्स दे सकते हैं कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए. उनके लिए नोट्स या असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. डोंट ओवरवे और अंडरवे ऑनलाइन रिसोर्सेज. So YouTube can be a great place to understand basics and numericals. So first year में YouTube काफ़ी useful रहता है, but as you progress through your semesters, तो we'll find कि YouTube पे या तो material कम है या फिर वो लिखने से marks नहीं आ रहे हैं. So yes, gradually you will have to shift to books, but first year में yes, YouTube के जो common subjects के resources अच्छे रहते हैं. मोस्टली प्रोफेसर्स क्वेश्चन पेपर्स किसी पर्टिकुलर बुक वगैरह से बनाते हैं, सो दैट गिव्स यू एन एडवांटेज. अबाउट नाउ, once we are gathered what all you have to study, so you need to start studying. There is no substitute to hard work.
So see, understand what all material you have gathered, ठीक है, and try to cover it as best as you can. Do not ignore the important topics, or like okay, this will do, that have to be done. And टॉपिक्स जिनके थोड़ा आने की कम प्रोबेबिलिटी है, सो वी टेंड टू लाइक गिव देम अ पास. तो ऐसा नहीं करना है. इफ यू रियली वांट टू डू वेल, तो आपको कवर करना पड़ेगा काफी. Yeah, about numericals and the calculator. So, lot of students, they do not have the practice of using a calculator. So a natural log, log base 10, anti-log लेना है, या फिर like numerical में you have to take log base 2, but there is no log base 2 in the calculator. So how to do that using a log base 10. So all that you should know. जो कैलकुलेटर्स में, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आप लोग यूज करते हो, उसमें डिग्री और रेडियन के बीच में कन्वर्शन होता है. सो साइन 30 आप लिख रहे हो, सो 30 इज डिग्री और रेडियन. सो ये सब सेटिंग करना आपको आना चाहिए. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप डील कर रहे हो, सो यू वांट आर थीटा फॉर्मेट और ए प्लस आई बी फॉर्मेट. तो वो सब आपको कैलकुलेटर्स में यूज करना आना चाहिए एंड कन्वर्ट करना आना चाहिए. Yeah, derivations and numerical, so you will understand with time कि yes, अगर किसी बुक से आपने किया है, एक prescribed बुक से आपने किया है, so they tend to be better graded. आपको पूरी बुक कवर करने की जरूरत नहीं है, बट जो मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, या फिर जो है जो डेरिवेशंस कराई गई हैं या डिस्कस करी गई हैं, तो वो आप जरूर करके जाइए बुक से. अगर आपको डेरिवेशन किसी बुक से कराई गई है क्लास में स्पेसिफिकली, देन डेफिनेटली डू दैट इंस्टेड ऑफ यूट्यूब बेस्ड थिंग. आस्क डाउट्स. पढ़ोगे, डाउट्स आते हैं, सो प्लीज डू आस्क योर टीचर्स या फ्रेंड्स. सो इट promotes a very healthy discussion, and it's good basically. And last thing is that you should have a habit of writing quickly and neatly. Okay, now about this. So this is something I've taken off from class 12 chemistry. This is the Friend-Ulich isotherm. Some of you might be recognizing this. Right, I'll address your concerns at the Q&A session. Okay, right, let's just run through this once, then I'll address all that. So over here, as you can see, initially, like if even with a relatively moderate amount of effort, you get some result. Okay, or the amount of pressure you increase, the amount of adsorption also increases. But as you go to the higher levels, you have to exert a larger amount of pressure or effort to get even a small increment in the result. So you can, actually grow from a 6 or 7 cg to a 8 cg, maybe push it up to a 9 cg. But if you are actually aiming for a consistent 9 or a cg, or you want 10 cgpa for certain subjects, so then you need to really put in a lot of effort to get that. So these are some general rules you should be following. Prepare a timetable, not just for one day, but in general. Like if you have 20 days left for exams, so you should have a structure. Okay, these are my subjects, this is the time I have to give to all of these. Maybe like 5 days for this, 4 days to this, and I have to do 2 subjects in one day, 3 subjects in one day, so many hours, and so on and so forth. And you must stick to whatever timelines you make for yourself. Keep a balance between subjects. तो लोग ऐसा करते हैं, ये सब्जेक्ट तो आसान है, ये इसको हवा में ले लिया, ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ये कौन करे, छोड़ दो इसको. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं, सो अच्छे से करें उसको. Be in a group of good people. See, association can have wonderful effects. So you are an association of people who want to work hard, who want to learn things, and do well in the exams. Have you people have a common goal.
So that can have a very significant impact on your results. Restrict mobile use. This is a very debatable thing. आजकल हमारा मटेरियल भी पीपीटी पे ही आता है या पीडीएफ से ही पढ़ रहे हैं, सो यस मोबाइल फोन का यूजेज रेस्ट्रिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है. सो बट अगेन सी मोबाइल फोन हैज इट्स ओन डीमेरिट्स. डिस्ट्रैक्शन, इंस्टा स्क्रॉल करने लग गए या कुछ और देखने लग गए, और जो आई स्ट्रेन पड़ता है सो अलग. सो मोबाइल फोन हैज इट्स demerits, so you can look at physical books and handwritten notes जो आप खुद बनाते हैं. For people who may not know this, there's a bookshop called Guruji Book Depot. So it's on the route to the metro station. So you can buy some books there, second hand, low cost पे available होते हैं. Social media can go into archives for some time till you finish with your exams. Maintaining the quality of your breaks. Your break shouldn't be like you started scrolling your social media accounts. Okay, break should be something more refreshing, like taking a walk, maybe washing your face, and eating some good fruit or something, and sticking to the timeline of your break. If you have like taken a break for 10 minutes, so do not make it 20 minutes or 30 minutes. This is about what you should do during the examination. So read the question paper once, the entire question paper from the starting to the end. It gives you an idea like what all has been asked, and maybe some sections where you need to put in more time. So it helps you time yourself. You may also find out that question paper lamba banaya gaya hai. So again, you'll get to know ki I need to write quickly. You should be trained to write neatly and quickly. This will come with practice. So a better handwriting has an unspoken or rather unwritten edge always. So this is there, right? If you write in a good handwriting and your paper is very presentable, so that that helps in securing a few more marks here and there. So to do that, you should provide adequate spacing, leave lines, organize your content into paragraphs, bullet points, numbering. यस, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम लिखते वक्त जो है आपके स्टार्टिंग में सारे पॉइंट्स दिमाग में नहीं आ रहे हैं कि ये एग्जैक्ट मुझे लिखना है, या फिर आप कुछ भूल रहे हो. सो इफ यू नॉट श्योर तो आप बुलेट्स यूज कर सकते हो. ऐसा कोई वो नहीं है कि यू हैव टू यूज नंबरिंग. ओके, we can underline a few relevant words or something like that if you find it necessary. Attempting the question paper in order, that's an important thing. You must attempt the question paper in order. If you think that you're not being able to answer a question well, or you're taking too much of time, so you can leave some space for that question and continue. These ideas are to improve your readability. Now the next thing is about reading questions carefully. See, when we read a question in the exam, you're in a hurry, right? You need to write a lot of things, I know, but you must read your question very carefully, because what we tend to do is कुछ एक जो है वो टॉपिक देख लिया, अच्छा इधर से क्वेश्चन है, अब जो है उसके बारे में जो आता है हम लिखना चालू कर देते हैं, ये ऐसे ऐसे होगा क्वेश्चन में. See, so you must understand what has been asked in the question and accordingly answer. Okay, if you don't know, then okay, write what you like. Okay, but if you know the specific answer, then please write a specific answer. Yes, do not leave a question if you can help it. So ऐसा नहीं करना कभी कि ये वन भी लिख दिया और उसके सामने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए. जो थोड़ा बहुत जितना आता है आंसर करो. ओके, जितना आता है उतना लिख के जरूर आओ. डू नॉट लीव अ क्वेश्चन ब्लैंक. टाइम योरसेल्फ. यस, आपको examination is time bound, so you need to finish all the sections within the stipulated time. So if you can't finish a question, leave space and move to the next question. Okay, this is the next point is also about not leaving questions.
So once you have finished with the question, tick that question on the question paper. We are allowed to make ticks or dots at least on the question paper. You're not allowed to write something on the question paper, but this little liberty has been given to you. So you can use this to make sure that you don't leave anything out. Because end sem mein you will be having option of doing 2 out of 3 questions for each of those questions. So like in that decision making process ही कौन सा question करना है, so कभी कभी रह जाता है question. So ticking that can help you avoid leaving a question. And revise the paper after finishing. So end sem mein the format is you have 5 questions, each having 3 parts. You have to attempt any 2 of those parts or each of the 5 questions. So that gives you around half an hour for each of those questions, and like 5 half an hours you need, and you have been given 6 half an hours. So the last portion is for finishing missed parts and revision. Now I'll talk about what you should do just before the exam, maybe 24 hours prior or so. Revise and stay alert. लास्ट मिनट पे कई बार कुछ आता है, कोई दोस्त बता देगा कि ये और पढ़ना है, या इस सेक्शन में ये बताया है कि ये भी आ सकता है. So you would have to be a little discriminatory at that time. अगर छोटा है टॉपिक and you think it's doable, so do it. If you think it's too long या फिर it will shake your confidence, so you can skip that part. Okay. Yeah, sleep well. Yeah, you should sleep well before your exams. So सब पढ़ा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की थी, बट एग्जाम में दिमाग नहीं चला. ऐसा होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इसका रीजन ये होता है, पीपल डोंट स्लीप वेल बिफोर एग्जाम्स. सो यू मस्ट स्लीप वेल बिफोर योर एग्जाम्स. एंड इफ यू स्टडीड वेल वेल आराम से सो जाओ. लास्ट थिंग इज अबाउट योर स्टेशनरी. सो आपका पेन पेंसिल कैलकुलेटर एडमिट कार्ड आईडी कार्ड एक रात पहले अपने बैग में रख लीजिए. ओके. ये नहीं कि एग्जाम के जस्ट पहले सवेरे सवेरे एडमिट कार्ड प्रिंट हो रहा है, या फिर एडमिट कार्ड लाना भूल गए, कैलकुलेटर लाना भूल गए, एंड यू आर आस्किंग पीपल की एग्जाम के लिए दे दो. Lot of invigilators, they do not allow sharing of calculators during the exam. And yeah, admit card is also very important for attempting the exam, in the sense that to be allowed to attempt the exam. So ये सब आपके पास रहना चाहिए. Yeah, we are coming to the end of the session, close to it at least. So exam खत्म हो गया, अब क्या? um, Well, see, it depends. See, so if you think that that subject is important, ये सब्जेक्ट में भी दोबारा आपका प्लेसमेंट्स का टाइम इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर आपको आउट ऑफ क्यूरोसिटी से अगर कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट में दिखा, या फिर एमसेम में पेपर अटेम्प्ट करते हुए दिखा कि दिस वाज इंटरेस्टिंग और समथिंग आई शुड हैव नोन, तो यू कैन रीड इट अप. Okay, last thing is about decluttering. So हमारे कॉलेज लाइफ में ना we are constantly bothered with a lot of things. फेस्ट्स हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है, जिम जा रहे हैं लोग, दिस एक्टिविटी दैट एक्टिविटी. So it can be very overwhelming, and time is limited. See, so you can only invest your time in doing certain things, and you need to choose what you need to do, what you don't need to do. मैं ये नहीं कह रहा कि don't go to fests या फिर आपको POR नहीं लेना चाहिए. That's a very important part of your college life. It helps you grow as a person. But then again, थोड़ा सा don't overdo. That's important. So yeah, that's where Dhira is with you. So through the regular classes and chanting, you will learn those powers of discrimination and dedication. You need, that will help you clarify that what you really want to do or what you should do.
So yeah, I think we are coming to the end of the session. Yeah, this is a quote I put in over there. Anybody remembers where is this from? Yeah, you can unmute chat पे जैसे भी. Yeah, right. Colonel Phillips, I think. Yeah. So I can only tell you कि कैसे करना है, but करना आपको है. So yeah, that's the essence of this quote. So yes, your enzymes are very close. So work hard, best of luck, and do well in your exams. Yeah, now I think we are open for questions. So you can ask anything. Please unmute and ask. Yeah, that would be very nice. Yeah, you can ask anything apart from what is mentioned in the PPT also, please. भैया हाँ, yes. डाउट था कि जैसे हमको अब हमारे 20 डेज भी नहीं लगते हैं, 15 दिन मान लो, तो जो भी हमको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट्स है, तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना टाइम किसको देना है उसके? कौन से थोड़ा सा अपना वो बताओ, कौन से ईयर से हो, कौन से ब्रांच से हो? भैया फर्स्ट ईयर है एंड आईटी ब्रांच है, एंड ओके सब्जेक्ट्स भी ओके, बताओ। नहीं नहीं, दैट्स ऑल राइट. सी ओके, सो 20 डेज हैं. सब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज कैसे करने की, क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है? देखो, पर्सनली आई वुड से द ऑर्डर इज नॉट क्वाइट इम्पोर्टेंट. ठीक है, इट्स अबाउट जस्ट कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम कितने टाइम में कवर कर सकते हो. एंड इट्स ऑल्सो अबाउट योर स्टाइल ऑफ स्टडिंग. जैसे सम पीपल दे आर कंफर्टेबल कि एक दिन में दे वांट टू डू मोर देन वन सब्जेक्ट, लाइक मे बी 2 or 3. अभी जैसे तुमने बोला 28 डेज हैं, देयर 5 सब्जेक्ट्स, तो दैट गिव्स यू रफली 4 days फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट? सो नाउ तुम लाइक 4 4 days करके, लाइक 4 days में एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, देन नेक्स्ट 4 days अगला सब्जेक्ट किया, एंड सो ऑन ऐसे कर सकते हो. और लाइक 8 days लिए, उसमें जो है हर दिन जो है थोड़ा टाइम एक सब्जेक्ट को दिया, थोड़ा टाइम दूसरे सब्जेक्ट को दिया. So that is very personal how you want to manage it. There is no particular order कि मुझे इस order में करना चाहिए. हाँ, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स कुछ कुछ में जो है थोड़ा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, सो यू माइट वांट टू गिव इट मोर टाइम एंड यस compensate elsewhere. ठीक है। हेलो भैया। यस. हेलो आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सुमित राइट. हाँ, मैं फर्स्ट ईयर एमई ब्रांच से हूँ। मेरी जो ओके मिड सेम एग्जाम्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार गए हैं। तो ओके, अभी अगर एंड सेम भी अगर अच्छा करूँ तो सीजीपी ठीक ठीक आ जाएगी? बहुत बेकार गए हैं. ओके, सी बहुत बेकार. सी ऐसा रहता है कि एंडसेम कैन एंडसेम अगर अच्छा दे दोगे तो आपका सीजी अराउंड 1 से 2 ग्रेड चेंज हो सकती है. ठीक है, एंड आप सिर्फ मिड सेम एंड सेम देख रहे हो, आपके इसके अलावा 2 सीटी भी रहे हैं, आपका लैब सब्जेक्ट्स भी रहे होंगे. सो ऐसा नहीं है कि मिड सेम से हताश हो गए. कुछ कंपोनेंट कई बार खराब हो जाते हैं, कई बार सीटी भी छूट जाता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं. सो दैट्स ऑल राइट, कवर अप हो जाएगा. आपके बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, सो वर्क हार्ड. ऐसे अभी ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीजी अभी भी नॉकअप हो जाएगी अब. ओके, थैंक यू। ओके, आई एम आस्किंग या सत्यम. या मतलब मैं एक सब्जेक्ट के लिए काफी परेशान हूँ, वो है एनालॉग. लिटरली मतलब मुझे काफी वो डिस्टर्ब कर रहा है वो सब्जेक्ट. ईसी से हो?
नहीं, आई एम फ्रॉम बायोटेक, बट हमारे सब्जेक्ट में वो एनालॉग सब्जेक्ट है ओके। हमारे। ओके। और वो मतलब जब मैं यूट्यूब और कहीं और से कंटेंट देखना चाह रहा हूँ, इट्स मतलब काफी बड़ा है। और सर इस मतलब अगर वो 100% है तो मतलब सर ने बस 20% पढ़ाया है। फर्स्ट ईयर से हो राइट अभी? या सी आई टेल यू व्हाट, इवन लाइक आई एम फ्रॉम ईसी, ठीक है। एनालॉग को ढंग से समझने में हमें जो है 2-2 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये ना ऐसे डोंट फील ऑड कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आता है, ठीक है। इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, सो मतलब ट्राई एज बेस्ट एज यू कैन, बट बाकी जो है जो ऐसे एकदम बढ़िया फुल अंडरस्टैंडिंग वो टाइम के साथ ही आएगी। एनालॉग इज नॉट दैट वेरी ऑब्वियस, क्योंकि बहुत एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो मतलब टाइम लगता है, कई चीजें पढ़ोगे देन ग्रेजुअली यू विल कम टू अंडरस्टैंड। सो अगर आप तुम सोच रहे हो कि एक ही, आई नो फर्स्ट सेम में रहता है, हमें भी डिफिकल्टी हुई थी, बट वही जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स एंड उसके बेसिस पे ही हम करके गए थे। फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ करना मुश्किल होता है फर्स्ट ईयर में, आई एग्री, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। बट जब मैं मिड सेम में मतलब मैं एग्जाम देने गया था, तो मैंने सोचा कि पीवाईक्यू से क्या ही पूछा जाएगा। और मतलब टीचर्स भी जो है वो यूनिट पे मार्क्स काट ले रहे हैं। मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उन्होंने यूनिट ना लिखने पे पूरे मार्क्स काट लिए थे। फिर मैंने बोलने पे मुझे हाफ एंड मार्क्स मिलते हैं। देखो ऐसा है कि देखो प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये तो मतलब ये गलती मत करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंसिडरिंग कि स्पेशली जब सब्जेक्ट में मतलब हार्ड है एंड तुमसे हो नहीं रहा है, तो एटलीस्ट वो तो करके जाओ जो मतलब जनरली पूछा गया पहले। सो प्रीवियस ईयर तो बहुत ढंग से आना चाहिए, ठीक है। एंड रिमाइंडर इसके लिए कि यूनिट वगैरह के लिए वो है, सो दैट इज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव कि जो तुम्हारा पर्टिकुलर जो भी कोई एग्जामिनर है या टीचर है वो अभी तुम्हें ग्रेड नहीं दे रहा है। तो अभी अभी के लिए यू कैन बी लिटिल स्पेसिफिक, यूनिट लिखनी चाहिए, आई वुड अग्री, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट मतलब सीनियर जैसे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो मतलब सिर्फ यूनिट के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस कोई स्ट्रेस नहीं करेगा। सो मतलब दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। आई वुड स्टिल रिकमेंड, हाँ यस यू शुड बी स्पेसिफिक अबाउट योर यूनिट्स, बट उसके ऊपर कि 2 में से सिर्फ आधा नंबर दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि तुमने यूनिट नहीं लिखी, तो वो दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, उसका कोई वो नहीं है। ओके। मतलब आप मुझे हेल्प कर सकोगे क्या? मतलब कि मैं क्या मतलब क्या उठाऊं, क्योंकि जब मैं पीवाईक्यूज पे पर ध्यान दिया था, तो ऐसा लिटरली में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया था, और लिटरली मेरे पूरे क्लास में किसी को नहीं समझ में आ रहा था, और उनके सॉल्यूशंस भी कहीं पे नहीं थे। और कुछ मेरे दोस्त थे बोले कि रट के चले जाओ आंसर। तो लिटरली में जब वो आंसर आया मेरे पास, मतलब क्वेश्चन आया, तो मैंने रट के नहीं गया था, और मैं बीच में स्टक हुआ, और मेरे दोस्तों ने पूरा लिख के आया है मतलब। हम्म। तो उसके ऐसे लिए क्या? दैट्स व्हाट आई सेड कि देखो पीवाईक्यू तो करके आना चाहिए, इफ यू कांट अंडरस्टैंड तो अब आई मीन अगर पीवाईक्यू में कराया गया है उसको एंड तुम्हारे पास लकीली उसका सोल्यूशन है, ठीक है, सो यू मस्ट नॉट इग्नोर इट, ट्राई करो समझने का। अगर नहीं आ रहा है देन या प्रॉब्ली जो है रट के लिखना इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज एज आई सेड देखो कोर के ना ज्यादातर सब्जेक्ट्स बहुत मतलब काफी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना जिनमें मतलब और भी तुम्हें जब तक एडिशनल नॉलेज नहीं होगी ना तब तक जो है उनको कमांड के साथ तुम कर नहीं पाओगे। सो दैट विल कम ओनली विथ टाइम। तो जैसे जैसे कि तुम और सब्जेक्ट्स देखोगे तो वी विल गेट टू नो विथ टाइम कोर कैसे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है। सो अभी मतलब इस पे इतना वो मत लो कि मुझे सब समझ में नहीं आ रहा है एंड मैं कैसे करूं, तो फर्स्ट ईयर में हो दिक्कत होती है बट आई थिंक यू कैन मैनेज। तो उस पर उतना वो मत करो कि सब समझ में आना चाहिए एंड ऑल दैट, अभी यू आर वेरी यंग फॉर दैट। ट्राई करो, बट अगर नहीं आ रहा है सो अगर किसी को भी नहीं आ रहा है तो दैट्स ऑल राइट, ऐसा हो जाता है कभी कभी, नो प्रॉब्लम्स। ओके एंड थैंक यू सो मच। मैं एक मतलब एक क्वेश्चन बिना एकेडमिक से पूछना चाहता हूँ कि हाँ हाँ।
मतलब आप डिस्कवर क्या कर सकते हो ना, हाउ टू, मतलब कैसे आप अपने आप को डिस्कवर कर सकते हो कि आप किस चीज में बेस्ट कर रहे हो या किस चीज में करना चाहिए। मतलब क्या, जैसे वो टेक वाला या कोर वाली चीज बोल रहे हो? या टेक या कोर, मतलब बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती See, हैं तो। हाँ, एग्जैक्टली, अभी फर्स्ट ईयर इज द राइट टाइम टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसका आंसर सिंपल सा है, एक्सप्लोर। ओके, ये उसका कोई राइट आंसर बोल के नहीं है। अपना जो है डीएसए भी करो, कोर भी पढ़ो, ठीक है। सी व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर देयर, कॉलेज तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे जो है अपना एक्सपीरियंस करने के बाद जो है जो तुम्हें लगता है, वो विद दैट। बट ये है कि अगर तुम्हें ट्राई करना है ना, थोड़ा सा लग के ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि अब लोग स्टार्ट करते हैं कुछ, एंड भाई कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे या कहीं फंस गए, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिर छोड़ दिया। तो थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा तुम्हें कि विच एवर, मतलब एक्सप्लोर करने में भी, कि ये करना है तो हाँ ढंग से एक्सप्लोर करें। एंड विथ टाइम फिर जो है यू विल गेट टू नो कि हाँ भाई मुझे जो है टेक डीएसए टेक साइड ज़्यादा जाना है, या फिर मतलब मुझे कोर ज़्यादा पसंद आ रही है, सो ये पता चल जाएगा फिर। ओके, वन मोर थिंग कि बायो मतलब आई एम फ्रॉम बायोटेक, देन आई हम्म। थिंक अबाउट कि मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक में काफी अच्छा रहेगा अगर मैं बायोटेक में और बायो इन्फॉर्मेटिक में जाने के लिए। तो आई नो दैट मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं पर थोड़ा सा मेरे को फ्यूचर प्लानिंग सोच रहा था। तो मतलब बायो इन्फॉर्मेशन के मैं सोच रहा था। तो सब्जेक्ट्स इलेक्टिव्स वगैरह क्या, मतलब हमारे कॉलेज में कैसे है मतलब। देखो, अब तुम्हारे पर्टिकुलर ब्रांच में जो है क्या इलेक्टिव्स रहते हैं ये तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम जैसे बायोटेक्नोलॉजी के सीनियर से बात करो। सो ही विल ऑल्सो टेल यू बेटर कि मतलब तुम्हारे ब्रांच में क्या स्कोप है, एंड जो भी इलेक्टिव्स वगैरह तुम पूछ रहे हो। सो आई थिंक ही आंसर यू बेटर। ओके। ठीक है। ओके, आई थिंक ये निशांत का, निशांत क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइवा में 4 में से 20 दिए। ओके, एंड सेम में कितने ला सकते हैं अगर फुल फोकस से पढ़ें? देखो ऐसा है कि जो है 40 में से 40 और 50 में से 50 आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर इफ यू वांट कि हाँ कितने आ सकते हैं तो फुल आ सकते हैं। अच्छा, ओके। ओके, मिड सेम में इतने आए हैं। ओके, या आई थिंक आई कैन स्टॉप प्रेजेंटिंग, 1 मिनट, आई जस्ट आंसर। मेरी स्क्रीन अभी भी प्रेजेंट हो रही है या रुक गई थी? आ रही है, स्क्रीन आ हाँ, रही है। हाउ डू आई एंड दिस नाउ? नेवर माइंड, चलो कोई नहीं। हाँ, ओके। ओके, मिड सेम 20 मार्क्स, एंड सेम 15 मार्क्स, सीटी वाइवा अटेंडेंस के लिए क्या वेटेज बता दीजिए। ओके, सो सी इसमें ऐसा रहता है कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, सो दैट कैन बी विद अ प्रैक्टिकल और विद अ ट्यूटोरियल। ओके, इफ इट्स अ ट्यूटोरियल वाला सब्जेक्ट तो उसमें एंड सेम और मिड सेम की वेटेज ज़्यादा रहती है। एंड इफ इट्स अ प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट तो मिड सेम और एंड सेम की वेटेज मार्जिनली कम रहती है, बिकॉज उनको प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी इंक्लूड करना होता है। ओके, सो ये जो कहा है कि एंड सेम 50 मार्क्स का है, एंड मिड सेम, मिड सेम आई थिंक फिर 25 का होगा, आई सपोज। अभिनव प्रभु, कैन यू शेड सम लाइट ऑन दिस? आई थिंक सिंस इनकी एनईपी लॉन्च हो गई है, सो इनका थोड़ा डिफरेंट है सिस्टम। हाँ हाँ सो हाँ हाँ। वो थोड़ा अलग है। मतलब मिड सेम्स उनके शायद जो एंड सेम्स हैं वो 50 मार्क्स के हैं, एंड मिड सेम्स 28 मार्क्स के हैं। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे अलग अलग मार्किंग स्कीम्स हैं। तो ओके, आई एम नॉट श्योर कि कितना है।
यस, सो आई गेस ये एनईपी गाइस, इनको थोड़ा सा अपना मैनेज करना पड़ेगा कि कितने वो क्या वेटेज है। बट इतना कह सकता हूँ, यस, जो रिटर्न आप लिखते हैं उसकी काफ़ी अच्छी वेटेज होगी। सो यस, यू शुड डू वेल इन रिटर्न थिंग्स, एंड बाकी यस, सीटी वगैरह एंड अदरवाइज ऑल्सो यार, जितने ज़्यादा मार्क्स बटोर सको अच्छा ही है, सीजी इम्प्रूव होगी तुम्हारी। ओके, नाउ कि मिड सेम में ग्रेड कम आए हैं तो कोई बात नहीं। ग्रेड आते कभी कभी कम, ठीक है। मतलब ऐसा भी सिचुएशन है कि 40 में से 17 नंबर आए हुए हैं, ठीक है, एंड सेम में 40 में से 0 भी मिले हुए हैं, इसी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इफ यू थिंक कि हाँ 20 में से 4 कम है, 40 में से 0 पे सोच सकते हो, 40 में से 12 नंबर आ रहे हैं। सो ऐसा होता है, बट हताश मत हो, कंटिन्यू विद देयर एफर्ट्स, एंड जो है निकल जाएगा। बाकी मतलब सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है तो वो फिर इंडिविजुअली अप्रोच करके पूछ सकते हो कि हाँ ये नहीं आ रहा है या वो नहीं आ रहा है, ये कैसे करना है, सो वो अलग से डिस्कस कर सकते हैं। अम, यार ये आई एम रियली नॉट श्योर, ये योगा वगैरह के सब्जेक्ट्स हमारे टाइम पे थे नहीं, हम तो एनपीटीएल करके जाते थे। सो राइट, आई कैन नॉट कमेंट कि योगा में बैक वैक का क्या सीन है। आई थिंक बैक तो नहीं आती है, बट वही है कि डिटेन हो जाते हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं हाँ, होती। आई थिंक वो एफई टाइप ही होगा ना। या बट आई थिंक बेटर यही रहेगा यार, तुम लोग मतलब अपने किसी प्रोफेसर या इनसे से पूछो अभी, मतलब कमेंट कर दो एंड देन इट शुड गो रॉन्ग। अच्छा हाँ, नाउ रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का ये होता है, देखो रिलेटिव ग्रेडिंग ऐसा होता है जैसे जेई में परसेंटाइल होती है। सो रिलेटिव ग्रेडिंग इज समथिंग सिमिलर टू दैट, कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल वेयर इज योर स्टैंडिंग। ओके, दैट इज रिलेटिव ग्रेडिंग। तो रिलेटिव ग्रेडिंग होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट इतने लोग होने चाहिए उस कोर्स में, एंड इतने लोगों के इतने से ज्यादा नंबर आए होने चाहिए, ओनली देन रिलेटिव ग्रेडिंग इज एप्लीकेबल। तो ऐसे करके रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। एंड या बेसिकली यस, आरसीजी का मतलब 80 परसेंटाइल, यस, काइंड ऑफ यू कैन से दैट। सेकेंड ईयर में इंटर्न लेनी है क्या? थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मिल जाती है, ठीक है, इतना टेंशन मत लो। अम, अभी तो सेकेंड ईयर में फिर एक्चुअली सीन की वही, अभी जो सेकेंड ईयर के बीच में अभी तुम्हें विंटर में इंटर्न वगैरह करना है, तो यू कैन डू दैट। उसके लिए मतलब ये स्टिल मतलब फ्रेशर यार, इवन एक प्रोजेक्ट ढंग का अगर तुम्हारे पास है तो दैट इज वेरी गुड। और क्या है, मिनिमम कितने बजे रिज्यूम में, ताकि सेकंड ज्यादा प्रेफरेंस एज इन। भैया मतलब जैसे डीएसए हो गया और वेब डेव हो गया, उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दें हम, और रीजनिंग वगैरह। ओके, तो ऐसा रहता है कि मैं अगर एकदम प्लेसमेंट या इंटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, ठीक है, तो क्या रहता है तुम्हारा, सबसे पहले ओए होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ओके, सो एंड इसमें जो सीजी का भी क्या रोल रहता है। सो सबसे पहले जो है ना, जब तुम फॉर्म भरते हो तो सबसे पहले लगता है सीजी क्राइटेरिया। ओके, सो तुम्हारी मिनिमम सीजी इतनी होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी अलाउड टू सिट फॉर द प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई इट्स रिकमेंडेड कि एटलीस्ट अराउंड 8.5 सीजी एंड अबव तो मेंटेन करो। ओके, नहीं तो फिर कट ऑफ में छट जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द ओए। तो ओए में मेजरली डीएसए एंड रीजनिंग आती है, एंड तुम्हारे ऊप्स डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ओके, ऊप्स एंड डीबीएमएस से लाइक अगर कुछ क्वेरी लिखवाई तो सही, वरना एमसीक्यू टाइप्स, ठीक है, ओएस डीबीएमएस ऊप्स से, एंड रेस्ट इज डीएसए। सो डीएसए पे कमांड, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टेक रोल, तो डीएसए पे तो बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। लाइक लीड कोड एंड कोड फोर्सेस सब पे मतलब तुम्हारी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, एंड मतलब रेटिंग अच्छी है बेसिकली क्या, तुम्हें डीएसए अच्छे से आती है, क्वेश्चंस तुम निकाल पाते हो।
So that is for DSA, and once you are done with the DSA, then इंटरव्यू के टाइम पे वो आपका DSA पूछेंगे एंड योर जो डेवलपमेंट के ऊपर आपने जो काम कर रखा है, आपने चाहे वेब डेवलपमेंट करी है, चाहे ऐप डेवलपमेंट करी है, या ब्लॉकचेन किया है, या फिर मे बी एम्बेडेड में कुछ कर रखा है, सो दैट इज ऑन यू. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो DSA आई वुड से इज इम्पोर्टेंट. इट्स मतलब इट्स मतलब अगर मुझे रैंक करना हो तो यस, DSA इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड देन आपका जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें आती हैं. बट हाँ, अगर इफ यू लुकिंग एट ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे कि आपको अपना वर्क शोकेस करना होता है, सो वहाँ पे देन योर डेवलपमेंट का काम जो है, दैट इज व्हाट इज टू बी शोन. भैया मतलब जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह भी देखी जाती है उस दौरान। यार फ्रैंकली मैं बोलूँ कि कम्युनिकेशन, एज लॉन्ग एज तुम डिसेंटली बात कर पा रहे हो, ठीक है, एंड मतलब रीजनेबल कमांड है तुम्हारी इंग्लिश पे, ठीक है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंस इज मोर इम्पोर्टेंट. सो एक बार वो है तो फिर बाकी चीज़ें निकल जाती हैं. क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता, मतलब इंटरव्यूअर भी अगर मतलब उसको कई बार लग रहा है कि आप हिचक रहे हो या आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, तो आप हिंदी में इंटरव्यू हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब बहुत बढ़िया कुछ कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए या एकदम मतलब स्पीच दे पा रहे हो, ऐसा कोई वो नहीं है. एज लॉन्ग एज डिसेंटली बोल पा रहे हो तो चलेगा. इंग्लिश में यस प्रेफरेबली, बट अदरवाइज ऐसे कोई बहुत उस पे वो वेटेज नहीं है. एंड इंटरव्यू आते आते ना मतलब तुम्हें पता चल जाता है कि क्या पूछते हैं एंड हाउ टू आंसर थिंग्स. तो ऐसे अलग से कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस हाँ नॉन टेक वगैरह देख रहे हो, देन यस कम्युनिकेशन डज प्ले अ रोल. यस. और कोई क्वेश्चन? डिटेन होने पे फीस, यस, जो है बैक अगर लगती है तो उसका कुछ होता है, आई थिंक 8,000 या 10,000 कुछ देना पड़ता है टू रीडू द सब्जेक्ट, तो वो है. यार अगेन ये NEP वाली चीज आई एम नॉट श्योर. अभिनव कुछ कह रहे हैं शायद. मतलब अगर FE है जैसे NPTEL का होता है तो उसमें तो नहीं देनी पड़ती, सिंस उसके 0 क्रेडिट्स होते हैं. इफ किसी सब्जेक्ट के क्रेडिट्स हैं और उसमें अगर डिटेन होते हैं, सो यू हैव टू री रजिस्टर और उसके पैसे देने पड़ते हैं पूरे. मतलब भाई 8,000 एंड 12,000 शायद समझ सेमेस्टर में होते हैं. स्पोर्ट्स तो वही FE टाइप चीज हुई ना. एक ओके. क्वेश्चन है ऊपर की. हाँ, दोबारा से आ गया. लैब में परफॉर्म भी करना होता है या फिर बस वाइवा होता अच्छा, ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है, ये पार्टली ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है, एंड ब्रांच टू ब्रांच में भी जो है कौन आपका वो उस टाइम एग्जाम ले रहा है. ओके. सो अगर आप मतलब आप लकी हैं एंड आपका थोड़ा कोई इजी एग्जामिनर आया तो ज़्यादा परफॉर्मेंस पे वो नहीं करेगा, वाइवा के बेसिस पे ज़्यादा काम हो जाएगा. कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट आ गया तो हाँ परफॉर्म करवाएंगे. ठीक है, बट अगेन वो भी वेरिएबल रहता है कि कितना वो परफॉर्मेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, या मतलब कुछ भी हाँ रिजल्ट आ रहा है तो चला दिया. सो मैंने ये ऐसी लैब का काम जो है बहुत सीरियसली नहीं होता है, दैट मच आई कैन टेल यू. आपका वाइवा आपको ढंग से देना है, ये जरूर है. बाकी फिर भी थोड़ा मैनेजेबल, मतलब मैनेजेबल क्या निकल जाता है काइंड ऑफ. ओके, NPTEL क्या है? IIT के लेक्चर होते हैं क्या, है ना, बट हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन. सी आई अग्री. ठीक है, कि हमसे क्यों करा रहे हैं ये, और उसमें फिर एडिशनल 1,000 रुपीज भी लेते हैं. बट अब है तो है. वहां तक सेंस बना रहा था कि जो है कुछ जो मतलब नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज पढ़ा रहे थे, बट देन बाद में तुम्हें इंजीनियरिंग इलेक्टिव्स भी लेने पड़ते हैं NPTEL के, तो यस इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. बट ओके, जो है यूनिवर्सिटी के रूल्स यू कांट फ्लाउट. ओके भैया, क्या ऑन कैंपस हम बेटर प्लेसमेंट्स के लिए फर्दर ट्राई कर सकते हैं अगर हमने पहले की. अच्छा, ओके. तो इसमें ऐसा रहता है कि
टीएनपी ना अपनी कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस निकालता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग मैंने जो तुम्हारा पैकेज होता है, सो दैट इज ग्रेडेड। ओके, लाइक अबव इतना 15 LPA इज लाइक ड्रीम कैटेगरी, इतना जो है इज A++ कैटेगरी, इतने से इतना इज ए कैटेगरी। ओके, so first thing is key, and then there is this division between core tech and non tech। ओके, सो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टेक कोर या नॉन टेक में प्लेसमेंट ले ली है, ठीक है, सो यू कैन नॉट शिफ्ट योर डोमेन टू अनदर थिंग कि आपने टेक में ले ली थी, अब आप चाहते हो कि मैं नॉन टेक में बैठूं, यू विल नॉट बी अलाउड। ये तब है जब आपको मिल गई है। ओके, जब तक नहीं मिले यू कैन सेट एवरीवेयर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक बार मिल गई है आपको किसी एक डोमेन में, सो यू कैन नॉट चेंज योर डोमेन। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट योर पैकेज का, ठीक है, ये जो A++ एंड ड्रीम वाली चीज। सो क्या ऑप्शन रहता है कि अगर आपका पैकेज जो है A+ कैटेगरी में पड़ता है, ठीक है, एंड एक और कंपनी आती है विच इज ऑफरिंग अ हायर पैकेज, ड्रीम पैकेज अबव ले से 15 लाख से जो भी, ओनली देन आप जो है उस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बाई चांस जैसे मतलब मान लो 16 लाख का पैकेज लग गया, दैट इज कंसिडर्ड अ ड्रीम पैकेज, बाद में अगर कोई 25 लाख की कंपनी आएगी तो आपको बैठने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा एट एनी मतलब इन एनी वे। ओके, सो ऐसा रहता है, एंड प्लस देर इज ऑल्सो दिस क्राइटेरिया कि जो है जो सेकेंड टाइम अगर आपको दोबारा बैठना है तो वो भी रहता है कि 70-80% कुछ लोगों को प्लेस हो जाना चाहिए, ओनली देन यू कैन री अप्लाई। सो बेसिकली दैट्स अ प्रैक्टिस विच इज डिस्करेज्ड वेरी ओपनली, आप बिकॉज वो चाहते हैं कि सबको कुछ ना कुछ एक जॉब एंड में ऑफर हो। सो अगर आप एक जॉब छोड़ रहे हो तो आपने बेसिकली किसी और की सीट खा ली जो शायद आपकी जगह हो सकता था। सो they try to discourage that policy very much। ओके, और क्या है NSU2 से बढ़िया? अच्छा, ओके, ऐसा नहीं होता कि फोर्थ ईयर में कॉलेज नहीं आना होता है, ठीक है, कॉलेज आना पड़ता है। तुम्हारा एक बीटेक प्रोजेक्ट नाम की चीज होगी, ठीक है, वो करनी पड़ेगी तुम्हें। तो हालांकि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन या क्लासेस नहीं होते, बट देन चक्कर काटने पड़ते हैं। इफ यू टेक अ कम्प्लीटली IT बेस्ड थिंग देन इट्स अ डिफरेंट थिंग कि घर पे गूगल मीट के बेसिस पे काम कर ले, गिटहब पे कर लिया। अदरवाइज आना पड़ता है, तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स भी होंगे जिसके लिए तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, बट यस प्रोफेसर्स आर रिलेटिवली लीनिएंट इन द फोर्थ ईयर, तो अटेंडेंस वगैरह मैनेज हो वीडियो जाता है। करो ना आवाज। या सो अटेंडेंस यूजुअली मतलब फोर्थ ईयर में मैनेज आसानी से हो जाती है, बट यस कॉलेज आना पड़ता है कभी कभी। ओके, इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल ही फ्री होगा, आ ही नहीं रहे। ओके, एनीथिंग एल्स, कुछ और पूछना किसी को? हेलो। यस, भैया। जस्ट अ मिनट, पहले ऋषिकेश को आंसर कर देता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू। क्या कॉलेज के सोसाइटी इंपॉर्टेंट होता है, क्या उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, सोसाइटी का कोई रोल होता है प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में? Okay, so yes, societies are important. Okay, do not take them for granted. मतलब granted ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा over importance दे रहे हो, ठीक है, like your academics. But yes, societies, because see through societies, you know, first of all that you make lot of friends. Okay, probably which will stay with you for your life. ओके, लाइक हम लोग भी सोसाइटी में हैं, सो आई नो अभिनव प्रभु और भी लोगों को मैं जानता हूँ, सो प्रॉब्ली विल कीप इन टच फॉर वेरी लॉन्ग। ओके, एंड सो यू नो societies are a place where you get to know people well because you work with them। एंड कई बार लाइक टाइमलाइंस छोटी होती हैं, कुछ एग्जीक्यूट करना है या मतलब कुछ मतलब एग्जीक्यूट कुछ इवेंट कराना है या कुछ कराना है, सो यू नो अंडर प्रेशर यू नो आई फाइंड कि बॉन्ड्स अच्छे बनते हैं। सो यस, सोसाइटीज आर वेरी गुड फॉर नोइंग पीपल, फॉर फाइंडिंग फ्रेंड्स। एंड अदर थिंग अबाउट सोसाइटीज इज कि यू नो आई थिंक सोसाइटीज से ना एक मतलब यू नो अदर देन एकेडमिक बैकग्राउंड, यू डेवलप some more social skills, and
how to manage events, how to deal with people, how to talk, and ऐसे मतलब इंट्रोवर्ट होते हो आप कई लोग, सो जैसे आप सोसाइटी में रहोगे, आप कुछ काम कर रहे हो, सो यू विल हैव टू टॉक, राइट? सो ये अच्छा रहता है उस तरीके से, यू लर्न लॉट ऑफ इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स। सो एंड यस, आपका जो सोसाइटी होती है, आप अपने सोसाइटीज को अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं दैट आई वाज पार्ट ऑफ सो एंड सो सोसाइटी। एंड आपने, आप जैसे इंटरव्यूअर आपसे पूछता है आप कौन सा सोसाइटीज में थे, आपने क्या किया इसमें, आपकी कोई पीओआर वगैरह है कि नहीं है। इनफैक्ट यस, नॉन टेक फर्म्स में यस, योर सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। सो यस, मतलब सोसाइटीज में ज़रूर आप पार्ट लीजिए। इनफैक्ट ये जो फेस्ट वगैरह होते हैं, इसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम में भी अगर आप हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी टीम में, डिज़ाइन टीम में, व्हाटएवर, तो उसमें भी दैट आल्सो यू कैन मेंशन इन योर रेज्यूमे। ओके, ओके सुमित, यस। अच्छा, वन मोर थिंग, यस, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए उसके लिए, एडमिट कार्ड जनरेट, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए। यस, सुमित। भैया मैं कह रहा था ना, ये धीरा सोसाइटी मुझे ज्वाइन करनी थी। मैं इंस्टा पे वेट कर रहा था कि इसका रिक्रूटमेंट फॉर्म कब आएगा, बट मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे होती हैं। मैंने बाद में व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप ग्रुप देखा। क्या कुछ मतलब कुछ तरीका है कि Yeah. फर्स्ट ईयर? Sumit, so you just pin me on WhatsApp and यस, I'll address you, ठीक है? और next जो भी हमारा होगा, I'll just explain you there, okay? यस, आई एक्चुअली मैसेज्ड यू एंड Yeah, यू so रिप्लाई अभी आल्सो। हमारी नेक्स्ट, हाँ हमारी नेक्स्ट मीट अभी हुई नहीं। नेक्स्ट मीट जब भी होगी, आई विल कॉल यू एंड जस्ट we'll have your further process, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक Okay, any more questions? या मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। आप फोर्थ, मतलब अगर आपसे मैं पूछूंगा अपने फोर्थ ईयर में क्या आपके गुड्स और बैड थिंग थे, बैड थिंग आप इम्प्रूव करना चाहोगे और गुड्स थिंग जो आप मुझे सजेस्ट करोगे करने के लिए? नहीं, मैं समझा नहीं हूँ। मतलब आपकी जो फोर्थ ईयर की जर्नी रही हो एनएसयूटी से, तो उसमें एक बैड थिंग और गुड थिंग रहे होंगे आपके। तो बैड थिंग आप क्या, मतलब क्या मतलब बैड थिंग इन द सेंस कि आप क्या चीज कहोगे कि ये चीज बिल्कुल मत करना, आ, और या मतलब ठीक है, और गुड थिंग्स इन द सेंस कि आप जो आपने किया और आपको काफी सही लगा कि हाँ आपको ट्राई करना चाहिए। आई थिंक जो कॉलेज का बेस्ट पार्ट होता है दैट इज फ्रेंड्स, ओके। सो आई मीन जो आपके पीयर्स के साथ जो आपका मतलब एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है इन योर कॉलेज ईयर्स, आई थिंक दैट्स समथिंग रियली गुड, ओके। एंड कॉलेज इज अ जंप इन अ सर्टेन वे, जस्ट लाइक आप 10th से जब 11th 12th में साइंस लेके आए थे, तो यू वुड हैव फेल्ट दैट जंप, ओके। अचानक से मतलब चीज़ें काफ़ी बदल गई थी, फोकस हो गई थी थोड़ी, एंड यस बदल गई थी बिकॉज एक पर्टिकुलर चीज़ पे इतना एम्फेसिस दे रहे थे। सिमिलरली आई थिंक कॉलेज इज द नेक्स्ट जंप इन योर लाइफ, ओके। नाउ अगेन जो है आप देखोगे कि प्रॉब्ली जो आप फर्स्ट ईयर में भी आपको ऐसा लग रहा हो कि 11th 12th से थोड़ा सिमिलर है, बट एज यू गो अहेड इन योर इंजीनियरिंग जर्नी, तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब कुछ बहुत स्पेसिफिक हम देख रहे हैं, ऐसा तो हमने देखा नहीं था पहले। सो that those experiences you gain, so वो आई थिंक काफी अच्छी चीज होती है, दैट शिफ्ट, दैट चेंज, लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप शायद 12th तक नहीं कर पाते हो, इंजीनियरिंग अलाउज यू टू डू ऑल दोस थिंग्स। लोगों को शौक होता है वो जो मेटल वर्क्स करने का, ठीक है, सो एनी गिव्स यू दैट चांस टू डू ऑल दैट। 11th 12th में कुछ लोगों को कभी आर्डिनो बोर्ड्स वगैरह के साथ वर्क करते हैं लोग, तो
ईसी में आगे आके मतलब आप काफी इन डेप्थ उस पे वर्क करते हो, सो इट्स लाइक दैट नेक्स्ट जंप, तो वो काफी अच्छा रहता है. What you can do more is, be a little more active with respect to your societies. Like आप इवेंट वगैरह में और थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो फेस्ट वगैरह हो सकते हैं. सो एटलीस्ट किसी क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं, सो यू हैव दैट गुड चांस एंड टाइम. तो आप किसी मतलब टीम वगैरह पे ज्वाइन हो सकते हैं, मे बी इट विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो ये आप चीज़ कर सकते हैं डेफिनेटली. एंड यस, सी एकेडमिक्स को बैकफुट में मत डालना. सो मैंने पहले भी बीच में किसी को मेंशन किया था कि 8.5 सीजी कम से कम लाइक मेंटेन होनी चाहिए. डीएस से कितना टाइम में हो जाना चाहिए? इफ यू डूइंग 90 मिनट्स अ डे या 5 डेज अ वीक. देखो ऐसा कोई वो नहीं है कि डीए से, देखो अगर डिपेंड करता है, तुमने अगर कोई कोर्स ले रखा है, मान लो जैसे कोडिंग निंजास या वो कोडिंग ब्लॉक्स वगैरह टाइप का, तो वो टाइम बाउंड हो ही जाएगा. ठीक है. तो अगर तुम इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, देन अगेन यू कैन अगेन टाइम इट विथ एनी कोडिंग निंजास या कोडिंग ब्लॉक्स का कोर्स, की भाई लेट्स 60 डेज का कोर्स है, तो उतना टाइम में मेरा भी हो जाना चाहिए. एंड डीएसए इज अ लॉट अबाउट प्रैक्टिस. सो आप मतलब प्रैक्टिस करते करते लोग सेकेंड ईयर में करते हैं एंड फोर्थ ईयर में अभी भी जो प्लेस नहीं हुआ है, दे स्टिल डूइंग द डीएसए ओनली. तो ऐसा कोई वो नहीं है कि इतने में खत्म हो जाएगा. तो मतलब यू हैव टू कीप डूइंग इट. भूलोगे भी तो ना अगर प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, तो जस्ट लाइक मैथ्स. सो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है. आप किसी कोर्स के साथ अपने आप को पेस कर सकते हो जस्ट टू नो ऑल दी कॉन्सेप्ट्स. बट उसके अलावा जो है, जो प्रोफिशिएंसी लाने में टाइम लगता है एंड वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ओके भैया, क्या आफ्टर कॉलेज जॉब लाइफ में क्या कॉलेज को लेकर जज किया जाता है? आई मीन जो आईआईटी से है उससे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है प्रमोशंस वगैरह में? सी अभी मैंने तो जॉब चालू नहीं करी है, सो आई कैन नॉट कमेंट कि कितना प्रेफरेंस देते हैं कितना नहीं देते हैं. या आई जस्ट रैप अप विद दिस लास्ट क्वेश्चन. सो यस, आपका जो है जहाँ तक पैकेजेस की बात है, सो अगर माइक्रोसॉफ्ट एनएसयूटी में आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट आईआईटी जा रही है, सो प्रॉब्ली एक आईआईटीएन को 10 लाख प्रॉब्ली ज़्यादा अपफ्रंट ऑफर होंगे. दैट्स अ फैक्ट कि मैंने आईआईटी इज आईआईटी. बट जो है ऐसा नहीं है कि आपको जो है मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी या फिर कुछ वो नहीं दिया जाएगा. सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2-3 years. ठीक है, आप जितना वहाँ पे भी हार्ड वर्क करोगे एंड यू बिकम वेरी कॉम्पिटेंट इन योर जॉब, तो दैट बाय इटसेल्फ स्पीक्स. सो मतलब फिर आपका वो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मतलब आईआईटी के बेसिस पे जो है पूरा करियर निकाल दिया. सो योर कॉलेज विल ओनली हेल्प यू गेट योर फर्स्ट जॉब. ठीक है, जो उसका एक मतलब बेसिक वो होता है. ठीक है, बट आगे अगेन इट्स योर वर्क. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कॉलेज के बेसिस पे काम चल रहा है. नहीं 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 नहीं, दैट इज ओनली एट द स्टार्टिंग. चलो ठीक है, ओके देन वील एंड द सेशन. थैंक यू सो मच. आई होप आई कुड आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. ओके. थैंक यू भैया. सो किसी का अगर कोई इनसे रिलेटेड अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं. मोर ओवर बाकी जितने डाउट्स रह गए हैं प्लेसमेंट और इन सब का, सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग. और आगे और भी लोग हैं, आनंद प्रभु भी हैं हमारे साथ ही. तो we'll टेक मोर सेशंस फ्यूचर में, या और भी जो जो लोग हैं हमारे साथ, हमारे सीनियर्स. मोर ओवर अगर किसी का एंड से रिलेटेड कुछ डाउट है ही कैन आस्क. अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you so much, Dhruv, for addressing them and clearing all their doubts. Even I also enjoyed it. So thank you so much, and thank you everyone for joining and being a nice audience. Okay, या थैंक यू ऑलराइट. let's just end the session. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण भैया. हरे कृष्ण.